So, hello everyone. Are you excited for Photography Club? Okay, great. Let's start a formal introduction of our club. I, Gyanendra Mishra, And I, Chanchal Chaube. we are representing the official photography and cinematography club of Samrat Ashok Technological Institute, Miraj. Next slide, please. Our club is a vibrant community of passionate individuals who come together to share their love for photography and cinematography. Guided by our esteemed faculty coordinators, Professor Sachin Jain sir, Dr. Monica Jain ma'am, Professor Abhishek Jain sir, and Dr. Chandpal Singh sir, under the cultural coordination of Dr. Ravindra Mohan Saxena sir. Also, आप जो भी इवेंट्स देखते हैं, जो भी पोस्ट देखते हैं इंस्टाग्राम के हैंडल पर, आइदर ऑन यूट्यूब ऑल्सो, फेसबुक पेजेस ऑल्सो, वो सब हमारे प्रोफेसर अभिषेक जैन सर ही हैंडल करते हैं. सो उनके लिए एक जोरदार तालियां हो जाएं. Great. Now, also I would like to introduce Mr. Shashank Jain, Ms. Neha Pandey, Mr. Pranav Pardhi, and Ms. Shreya Kumari, the conveners of our club Miraj, as well as my fellow mates and my friends Rahul Rajak and Prem Gautam, the co-conveners of our club. Next, please. Now, about us. What are we? How we manage our work? What we actually do? So, Miraj is more than just a club. It's a journey of creativity and exploration. अच्छा, मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगा, आप लोग बस हाथ उठाना. आप में से कितने लोग हैं जो प्रोफेशनली फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी या फिर सिनेमेटोग्राफी करते हैं? बस इतने ही लोग. और ऐसे कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि क्लब में आए, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें? ओके, हाथ बहुत ज़्यादा हो गए. ग्रेट ग्रेट. So, whether you are a seasoned photographer or just starting out, this is a space where you can hone your skills, exchange ideas, and showcase your talents. Basically, our aim is to turn ordinary moments into extraordinary memories. मैं इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ आप सबको. अभी आप सब लोग कॉलेज स्कूल से निकल करके जस्ट कॉलेज ही आए हैं. आप लोग का ये जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, ये आपके लिए एक फेस्टिवल है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये आपके साथ हो रहा है. आप आगे डिग्री वगैरह और करेंगे, मास्टर्स करेंगे तो बात अलग है, बट अभी के लिए ये आपके लिए तो एक फेस्टिवल है. तो जब आप जो हमारी मिराज की टीम है, जैसे राहुल रजक हो गया, पलक हो गई, हमारे मिस्टर शशांक जैन सर हो गए, तो जितने भी लोग हैं ये सब लोग आपकी इमेजेस क्लिक कर रहे हैं. यही इमेजेस अभी आपके लिए ऑर्डिनरी मोमेंट्स हैं. जब यही आप 20 से 25 साल बाद वापस रिव्यू करेंगे, इन्हीं फोटोज़ को देखेंगे, वीडियोज़ को देखेंगे, दे विल टर्न इनटू एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेमोरीज. सो दिस इज द पावर ऑफ फोटोग्राफी. नाउ चंचल प्लीज. Welcome to the world of photography. I just mentioned world of photography. What do you all understand by this term? Anyone please? World of photography. Okay, so many of you may say it is the collection of images or may say album of photographs is a world of photography. No, actually it's not. The world of photography is the whatever we capture around us, like objects, like the world around us is, we can say it as a world of photography. Let's embark on this exciting adventure together. Move forward, please, next slide. The sense of photography. As my fellow mate Gyanendra said, capturing the ordinary moments into extraordinary memories is actually the essence of photography. Just let's have a look on this word photograph. What do you guys understand or what do you guys think about this word photograph? What is photograph? Can anyone tell me what is photograph? Anyone? How many of you know what photograph is? उसको माइक दे दो. माइक.
what photograph is? What is photograph? इमोशंस को पिक्चर में एक्सप्रेस करना. Okay, so good one. But let me explain it. Let me explain it. Photograph is actually a Greek word in which photo means light and graph is actually a drawing. So photograph is a drawing of light. He said emotions ko explain karna. It is in our normal language. He explained very well, but the photograph is actually the drawing of light, and the word itself explains it what the photograph is. Okay, so the moving ahead. Next slide, please. Impact of photography. अपन सभी social media चलाते हैं. Most of the people around here may use Instagram and Facebook, right? All of you use Instagram, right? Okay, so Instagram पे हम different pages को follow करते हैं, जैसे कि SATI का SATI Engineering, Mirage.SATI. तो इन pages में हम क्या देखते हैं? Photographs in their posts and stories. These photographs depicts a story in itself, right? Like if we write a hundred words essay, like a one-page essay, and on the other side we have a photograph which is in itself depicting a story, telling a story. So what would you prefer to just read out the essay of a one-page long or a 100 words, 500 words essay, or would you like to go through the photograph and understand the situations? I think most of us will prefer to a photo. This is what a photograph impact on us. Like on social issues, there are a lot of social issues which could be presented through the photographs on the social medias and other platforms. Moving forward. So, ये तो बात रही मिराज की कि मिराज है क्या, फोटोग्राफी क्लब बेसिकली हमने तो बता ही दिया. बट अब ये देखते हैं कि हमारे काम क्या क्या होते हैं. सो एट मिराज वी एंगेज इन वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग कॉलेज इवेंट्स, वर्कशॉप्स, फोटो वॉक्स टू एग्जीबिशन एंड फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट. अगर हम कॉलेज इवेंट्स की बात करें तो हमारे कुछ मेजर इवेंट्स होते हैं, जैसे सम्राट उत्सव, टेक्नोविजन, क्रिकेट टूर्नामेंट. ये कुछ मेजर इवेंट्स हैं. साथ ही में अगर वर्कशॉप की बात करें तो कैमरा हैंडलिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, these works come under back side please, under workshops. Apart from this, video editing and graphic designing plays a major role in today's era as well as in our club also. So we generally focus on these type of things also. Next slide please. Okay, मैं आप सबको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि जितनी भी इमेजेस आप हमारे बैकग्राउंड में देख रहे हैं वो सब की सब हमारे मिराज के सीनियर्स, मेरे फेलोमेट्स एंड मेरे जूनियर्स ने ही ली है. सो ये कहीं से इंपोर्ट नहीं की गई है. और साथ में थैंक यू. अ पिक्चर इज़ अ स्टोरी इन इटसेल्फ. बेसिकली जो फोटोज़ होते हैं, आप वीडियोग्राफी भी बोल सकते हैं, तो वो एक इमोशन शेयर करते हैं, वो खुद में ही एक स्टोरी टेल करते हैं, जैसा चंचल ने बताया. अगर हम पहले पिक्चर को देखें, विच इज़ क्लिक्ड बाय राहुल रजक, को कन्वीनर ऑफ आवर क्लब. सो अगर हम इस इमेज पे देखें, देयर इज़ अ ओल्ड मैन ड्रेस्ड ट्रेडिशनली ग्रेजिंग आउट ऑफ द ट्रेन विंडो. द वार्मथ ऑफ द सन adds a sense of nostalgic and solitude, which expresses the quietness of his journey. ऐसे ही अगर मैं सेकेंड इमेज की बात करूं, हम देख सकते हैं गंगा आरती हो रही है, विच इज़ क्लिक्ड बाय मिस्टर शशांक जैन सर. सो इसमें जो है हम देख सकते हैं ग्लोइंग फायर है. अ ग्लोइंग फायर इज पेयरिंग विद अ डिस्टेंट मून. हम मून भी देख सकते हैं, फायर भी देख सकते हैं, तो एक कनेक्शन कर रहा है. It's a timeless connection between nature and spirituality. Same as in this slide, there is aloneness, sad faces, and happiness. They all are clicked by our seniors and our fellow mates. So these things.
Next slide, please. All these images are also clicked by our team Mirage. So likewise, you can see this image or a picture of an old man using his legs to move a boat. On the other side, like I just said before, a picture shows or depicts a story, right? So जैसे हम ये picture में देख सकते हैं, एक old man है, on the other side of the boat there is a garbage, right? So this is showing how we balance up our lives. We can get motivated or we can learn so many things through just one pictures. Likewise, all these pictures also depict a story in itself, and all these pictures are clicked by our team. Next slide, please. आप लोगों के सामने एक फोटोज दिख रही है. किसी को पता है क्या कि ऐसे इमेजेस को अपन क्या बोलते हैं, क्या नाम देते हैं? Anyone? चलो मैं ही बताता हूँ. बेसिकली वी कंसीडर दिस टाइप ऑफ इमेजेस एज लाइट पेंटिंग. यहाँ पर बहुत कुछ टर्मिनोलॉजीज लिखी आ रही हैं. इतना अपन डिटेल में नहीं जाएंगे. फोकल लेंथ, एक्सपोजर टाइम, आईएसओ, शटर स्पीड. मैं आपको बेसिकली 3 चीज़ें बताना चाहता हूँ जो कैमरे में होती है. शटर स्पीड, आईएसओ एंड अपर्चर. आईएसओ बेसिकली ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करने के लिए, शटर स्पीड किसी भी इमेज को स्टैटिक बनाने के लिए, एक पर्टिकुलर फ्रेम खींचने के लिए. सो ये जो है, ये इमेज है, ये चक्री तो सभी लोग जानते ही होंगे, दिवाली में जलाते ही हैं. तो उसकी इमेज है. जो चक्री है वो बहुत तेज घूमती है, ठीक है. अब अगर हमको एक फ़ोटो क्लिक करनी है, अगर हम नॉर्मली फ़ोटो क्लिक करेंगे तो वो ब्लर इमेज आएगी. बट हमको क्या करना है, एक क्लियर इमेज चाहिए. हमारे पास जो कैमरा है वो एक मशीन है. हम उसको एक इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेंगे, उसे ऐसा सेट करेंगे कि उसको ऐसा लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट एक स्टैटिक है, बट एक्चुअली में वो एक मूविंग ऑब्जेक्ट है. दिस इमेज इज ऑल्सो क्लिक्ड बाय राहुल रजक. सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. This is our designing work. This is also done by our team. These are actually our Instagram posts created by our team for advertising our events. Like we used to conduct so many different events and workshops to make people learn more about the photography. Okay, so here is a poster of photo vendor. You can see here. This photo vendor was an event conducted by us for our second year students, juniors. So in this event, we have conducted a photo walk. Along with that, there were so many fun games related to the photography, and most of the people enjoyed it, and we got a very nice feedback from this. There is also a poster of Shutter Splash. This was event conducted on the occasion of Holi. Next slide. These are the events covered by our team. सो स्टार्टिंग में मैंने बोला था अवर वर्क्स में कि हमारे कुछ इवेंट्स कवर करते हैं जो कॉलेज के इवेंट्स होते हैं जनरली. तो इसमें अगर देख सकते हैं हम, SATI कॉलेज होस्टेड द MP काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एज वेल एज वी हैव कवर्ड दिस एंटायरली. इन द सेम वे you can see a robo race held under Technovision. Next, Pushpanjali of Srimant Madhav Rao Sindhya ji. And recently we have covered Matki Fort competition in Krishna Janmashtami. And both images, solo dance and group dance under SU, as well as cricket image जो हमारे टूर्नामेंट होता है हमारे कॉलेज में. मेरी टीम ने मुझे बताने को मना किया था, मेरे फेलो मेट्स ने, बट मैं आप लोग को बता रहा हूँ. द पर्सन हु क्लिक द इमेज इज मिस्टर शशांक जैन सर, एंड द पर्सन हु इज बैटिंग इज माई सेल्फ, ओपनिंग द इनिंग्स फॉर SATI. सो दैट्स इट. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो नाउ ये तो रही स्लाइड की बात. अब देखते हैं इन कैमरे के पीछे के चेहरों को कौन कौन बेसिकली क्या लीड करते हैं. सो मिस्टर अक्षर श्रीवास्तव एंड मिस नेहा पांडे लीड द फोटोग्राफी टीम, एज वेल एज आई am the representative head of photography department. This is our cinematography team. Mr. Shashank Jain sir, cinematography head, Deepan Solanki sir, cinematography head, and Divyansh Soni, representative head. Moving forward, for the graphic teams, Mr. Pranav Parthi and Ms. Priya Kumari
are leading from the front, as well as Rahul Rajak, the representative head. Video editing team, Mr. Shashank Jain sir and Vinay Goyal sir are the video editing head of our team, and Sajal Pandey, representative head, who is currently editing videos of this induction program in SAT, you may see on SATI engineering page. Now, for the content, Ms. Sakshi Gautam and Ms. Prashi Sharma are the leading, as well as my fellow mate Kosha Kumbhare is the representative head of content. And at last, The social media team, Sakshi Somkuar ma'am and Ms. Lipakshi Mars Kole. These are the social media head, and Mr. Prem Gautam is representative head. So, अब आप सबने जान तो लिया कि मिराज क्या है, what is मिराज and all about the photography and all. और जितने सारे हाथ खड़े थे, मुझे लगता है most of the people here want to join this club, right? So you should follow this Instagram page, and this is the link, a QR code for our WhatsApp group updates. So where you may get updates about the recruitment when we will recruit the members for our club. तो QR code scan कर लीजिए. And for any queries, you can email us also on miraj@satiengineering.in. thank you. Thank you. And All these images are also clicked by our team. Okay, thank you so much. now, एक छोटी सी क्लिप आप सभी के लिए है. बेसिकली वी आर द सिनेमाटोग्राफी क्लब ऑल्सो, तो उसी पे बेसिस है एक छोटी सी क्लिप आप लोग के लिए बनाया गया है. सो एंजॉय दिस. Thank you. So this is from the team Miraj, and thank you, and do us follow on Instagram, and WhatsApp का QR कोड भी स्कैन कर लेना. Thank you. Thank you, Miraj. Their passion for capturing moments is truly inspiring. A big thank you to the Photography Club for sharing your world with us. Now, a QR will be displayed, and you all are requested to scan and fill the form. It's the QR for the Narcotic Department. You will be rewarded with the certificates by the Narcotic Department.
Next up, it's time to introduce a club that's all about growth, both in how you communicate and how you carry yourself in world. Let's welcome our speakers and skill development club led by its incredible coordinator, Dr. Shilpa Datta ma'am and Dr. Suchi Mishra ma'am, and co-coordinators, Professor Sheena Kumari ma'am and Professor Abhishek Sonkar sir. This club is dedicated to helping students enhance their skills from leadership and communication to technical abilities. They will provide us with a glimpse into their innovative program and initiatives designed to empower and support our growth. We would like to invite the skilled members of Speakers and Skill Development Club to take the stage and give us an inside look at what makes their club so special. Good afternoon, everyone. Hi, my name is Sakshi Gupta, And my name is Akshat Tiwari. and we are honored to represent one of the most prestigious club of our college, the legendary. Speakers and Skill Development Club, Fiat. Fiat. So let's dive into Fiat. Just hold on. I think there is a glitch in video play. So just wait for a second, please. And first slide. So hello everyone. तो हम सभी यहाँ पे स्पीकर्स एंड स्किल डेवलपमेंट क्लब की तरफ से यहाँ पे हैं फियाट जिसको कहते हैं फुल फॉर्म ऑफ फियाट इज फेथ इन एक्शन टुगेदर हम वो काम करते हैं जिसकी सबसे ज़्यादा जरूरत होती है हमें कॉलेज लाइफ में एम आई करेक्ट साक्षी Yes. In Fiat, we focus on overall personality development of yours, be it speaking skills, presentation skills, communication skills, and we even prepare you for the interviews. After all, we all are here with a goal set in our minds that we have to ace our placement, right everyone? Okay, many of you are also here for entrepreneurship, am I right? So, in each and every field, you have to be confident enough to represent yourself without getting nervous. All right, so how many of you present over here can come here and give a speech right now? एनीवन All About- right, let me rephrase my sentence. How many of you have stage fear? वी विल टॉक इट लेटर All सो right. आई थिंक द वीडियो इज रेडी टू प्ले
पीपीटी पीपीटी सो लेट मी टेल यू वन थिंग, जब हम कॉलेज में आते हैं तो सबसे बड़ा जो स्कोप होता है हमारे लिए कि हम अपने आप को डेवलप कैसे करते हैं, क्योंकि जो सबसे पहला पॉइंट आता है टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। तो हमारे क्लब में, जब हमारे क्लब में पार्टिसिपेट करते हैं, जब कोई भी एक्टिविटीज़ होती है तो हम टास्क अलॉट करते हैं। उस टास्क के रिगार्डिंग आपको प्रिपेयर करना होता है, पीपीटी बनानी होती है, और कई बार आपको स्टेज पे जाके रिप्रेजेंट करना होता है, जिसकी वजह से आपकी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होती है और आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो। साक्षी, नेक्स्ट टू यू। All right. So मेरा क्वेश्चन बीच में रुक गया था. How many of you have stage fear? And those who are not raising their hands, are they confident enough to speak in front of everyone? I think there are a lot of people here present who have stage fear. All right. So we at Speakers on Skill Development Clubs help you refine your skills, and those who are confident enough, we provide you with opportunities to showcase your potential. So here is our Fiat family. Next. Now, I would like to introduce you to our mentors. Our Honorable Director, Sir, Dr. Y.K. Jain, Sir, our Cultural Coordinator, Dr. R.M. Saxena, Sir, and Dr. Veena Datta, Ma'am. And our faculty coordinators of our club are Dr. Shilpa Datar ma'am, Dr. Suchi Mishra ma'am, Professor Seena Kumar ma'am, and Professor Abhishek Sonkar sir. Now, our vision and mission. So we aim to develop a community of lifelong learners who continuously enhance their skills, knowledge, and capabilities. Our mission is to empower individuals to realize their full potential, embrace themselves toward personal growth, and make a positive impact in their lives. I think one of the most important questions arises in everyone's mind: what we do. Yes, so we work on enhancing our students' public speaking, presentation skills, communication skills, and leadership skills. And how we do that, Akshat? So we do it by giving opportunities in stage management, event organization, and intra-club activities. Intra-club activities are those activities that we organize for our members as well as for ordinary people. Stage and event management. Our club officially looks after event management, stage management, and anchoring in various events organized in the institute. Some of the events are induction program, commemoration of late Sriman Madharao Sindhya Ji death anniversary, various competition like essay writing, debate writing, and the legendary event of our college, the annual event Samrat Utsav. हमारे कॉलेज में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। उन सभी इवेंट्स में इवेंट मैनेजमेंट, स्टेज मैनेजमेंट और एंकरिंग के लिए हमारा क्लब सपोर्ट करता है, और कई सारे कंपटीशन जैसे डिबेट कंपटीशन, ग्रुप डिस्कशन और भी बहुत सारे इवेंट उसमें हमारा क्लब ही लुक आफ्टर करता है। We have organized various successful events till date. Some are Potpourri, Admania, Brainiacs, Fun Zone, Movie Trivia, and one of the legendary event of our club, that is Crime Scene Investigation, that has already crossed 4 seasons, and the fifth season is on its way for you all. And recently we have completed our successful event Class Carnival Season 1 for our juniors and our batchmates. And hoping so, its Season 2 will be on the way for you all. These are the glimpses of some of our events that we have organized till date. Potpourri. Next. Potpourri, Admania,
Group discussions is one of the activity that we basically focus on because in your interview round, this is the one round that is very important for your selections. मैनेजमेंट, हमारा क्लब बहुत सारे इवेंट्स में मैनेजमेंट का काम करता है. आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि इवेंट मैनेजमेंट, स्टेज मैनेजमेंट और एंकरिंग में हमारे कॉलेज में जितने भी इवेंट होते हैं उसमें हमारा क्लब सपोर्ट करता है. सो दीज आर सम ग्लिम्पसेस ऑफ आवर मैनेजमेंट बाय फियाट क्लब. One of the event is Fun Zone. Now, here comes the most important part. Now, you might be wondering what this club brings for you all. So, we improve communication skills, gain confidence in public speaking, and articulates thought more effectively. मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं कि आप सभी में से कितने लोग अभी मैं बुला लूं तो वो पब्लिक स्पीकिंग कर सकेंगे? कितने लोग कर सकते हैं अभी? साक्षी, मैं देख पा रहा हूं कि 10 से ज़्यादा हाथ भी नहीं हैं. तो हमारा क्लब आपको वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से आप पब्लिक स्पीकिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल सुधार सकते हैं क्योंकि एक्टिविटीज़ के थ्रू जो हम आपको टास्क अलॉट करते हैं उसके थ्रू आपकी कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छी होगी. Leadership skills. Build leadership abilities by organizing events, managing events, and leading initiatives. Now, अब जैसे कि अगर हम कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसमें हमें पूरी टीम को लेके चलना होता है. जब हम उस पूरी टीम को लीड करते हैं तो हमारी लीडरशिप स्किल्स एनहांस होती हैं. That's what we organize events for, right? Career development. Enhance soft skills that are highly valued by employers, including presentation skills and interpersonal skills. आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये पीपीटी है. इसके पहले वीडियो चला था और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सॉफ्ट स्किल्स में काउंट होती हैं. तो जब हम अपने करियर की तरफ बढ़ते हैं तो ना जाने कितने सारे मौके मिलते हैं लेकिन कुछ हमें सॉफ्ट स्किल्स नहीं आती हैं, उसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं. तो हमारे क्लब में ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग और भी कई सारी चीज़ें हैं जो सिखाई जाती हैं. यहाँ पे सभी को सॉफ्ट स्किल्स का मतलब पता है? How many of you know the meaning of soft skills? There are two types of skills, hard skills and soft skills. The technical skills comes under hard skills and your speaking abilities, presentation skills, leadership skills comes under soft skills. So we help you enhance that. Confidence in interviews. Overcome nervousness and perform confidently in high pressure interview situations. I know that यहाँ पे सभी लोग का एक ही motive होगा to ace their placements. And in order to do that, you have to sit for interviews. Interview में एक aura create होता है, एक high pressure situation जहाँ पे आपको nervous नहीं होना होता है और confidently deal करना होता है. Am I right, everyone? यहाँ पे सभी लोग interviews में बैठेंगे? Okay, so we train you for that as well. Positive body language. Learn to maintain good body language and eye contact, making a strong impression on interviewers. जो हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है वो डिफाइन करती है कि हम क्या हैं, हम क्या एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं. हमारा हैंड मूवमेंट, हमारा बॉडी पोस्चर, हमारा आई कांटेक्ट ये डिफाइन करता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो और आप क्या प्रेजेंट करना चाह रहे हो. तो हम इसमें भी काम करना में ध्यान देते हैं क्योंकि बॉडी लैंग्वेज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन यू आर ऑन स्टेज. I think so. Am I correct, Sakshi? Yes. Now I remember the first day of my college when I came here. I was terrified of speaking in front of people. But, you know, after joining this club, I have transformed myself and I'm confident enough right now to speak in entire crowd right now. So, are you guys excited to be the next one to represent this club? How many of you are ready for it? Well, Okay. Our achievements. Our club student Pratik Rajawat and Ashish Karar made a proud moment by selected among 20 representatives from India to attend Future City Summit 19 organized by University of Chicago, Hong Kong.
Girls of our club took an initiative to teach juvenile girls and made a positive difference. So, now you all have got the insights of our club, right? So now it's time to explore our club more. So now, to get to know more about our club, you can scan this QR code and follow our Instagram handle @Fiat_club_SATI. Follow Fiat and ready to be the part of Fiat family. Thank you so much. We welcome you on our upcoming events. All the best, everyone, for your future. Enjoy your engineering 4 years. All the best. Thank you so much to our Speakers and Skill Development Club for that insightful and inspiring introduction. Your dedication to helping students grow their abilities and unlock their full potential is truly commendable. The skills and opportunities you're fostering are essential for our community, and we appreciate all of your hard work. Moving on to the club where innovation meets creativity. They work on cutting-edge projects and participate in national and international tech competitions. Yes, we have our incredible technical club, also known as Flux, the mastermind behind innovation and problem solving. They are always pushing the boundaries of innovation and technology here at our college. Under the guidance of coordinators, Dr. Ashutosh Datar sir, Dr. D.K. Shakya sir, and co-coordinator Professor Neeraj Singh sir and Professor Neil Joshi sir. Let's welcome them on stage as they introduce their club along with the projects and plans they have for us. Before that, I request everyone to scan this QR code as it is going to take you to the Form of Narcotics Department, and they will also be providing you certificates for that. Do scan the QR code, everyone. Let's welcome Flux on the stage. It's important for all you guys to fill the form as you will be rewarded the certificates from the narcotic department. मतलब भी तो समझ में आना चाहिए। मतलब भी तो समझ में आना चाहिए। ऐसे किताबी डेफिनेशन रट के क्या फायदा? There's no science without experiments. Theory will take you only so far.
Sometimes it's the very people who no one imagines anything of who do the things that no one can imagine. Hey, have you heard about Flux, the technical club of our college? It's where innovation meets technology, and it's absolutely amazing. I remember this one robotics workshop we had. It was so hands-on and we actually got to build something from scratch. Flux is all about pushing the boundaries of what's possible. We work on some really cool projects, from building IoT devices and robots to developing software. It's not just about theory, it's about transforming ideas into reality. But it is not just about the project. Flux is a community where learning, innovation and teamwork come together. We host workshops, hackathons and competitions where everyone can dive into tech and collaborate. If you are into tech, you have got to join Flux. That's what I love about Flux. You are surrounded by people who are just as passionate about tech as you are. And together we create something amazing. Don't miss out on the chance to be a part of something awesome. Join Flux today and let's shape the future of technology together. Hello. So hello. Yes. So hello and good evening everyone. एनर्जी डाउन है क्या? सुबह से बैठे हुए हो, थक गए? रुको मैं एनर्जी लाता हूं. बोलो भारत माता की. बोलो भारत माता की. वंदे वंदे इंकलाब. आ गई एनर्जी? अभी भी नहीं आई? चलो एक बार और बोलो भारत माता की. अब आ गई? चलो अब फ्लक्स लाएगा एनर्जी. Yes, hello and good evening everyone. We are Technical Club Flux, specialized in impossible things. And नहीं, ये सिर्फ हमारा tagline नहीं है. This is much more than that. So, standing before you, we want to introduce ourselves to you. Firstly, our mentors. Our mentor, esteemed Dr. Y.K. Jain sir, Director SATI, Dr. Ravindra Mohan Saxena sir, Cultural Coordinator, and Dr. Veena Datar ma'am, Cultural Coordinator. Dr. Ashutosh Datar sir and Dr. D.K. Shakya sir are the faculty coordinators, and Professor K.G. Kidar sir, Professor Neeraj Kumar sir are the faculty co-coordinators. Student coordinators, Prerna Rathore, Abhijit Singh, Ayush Suryavanshi, and Monica Bisene. Yes, so what is Flux? Flux is a place where technology meets creativity. जहां आप अपने खुराफाती आइडियाज को लाएं जिन पर आपकी मम्मियों ने आपको खूब मारा है. आप अपने खुराफाती आइडियाज को लाके लाइक माइंडेड पीपल्स के साथ मिलके ग्रो, क्रिएट और इनोवेट करते हैं, और जहां आप इंजीनियर से लेके इनोवेटर तक का सफर तय करते हैं. करना चाहते हो कि नहीं? भाई कुछ इंथुजियाज्म तो शो करो. Okay, so what's our vision? So imagine करो, imagine कि आ गए हो, अभी आप आए हो कॉलेज में and you wanna learn tech and grow your journey. So फ्लक्स का ये विजन है कि वो आपको आपकी टेक्निकल जर्नी में हेल्प करती है, आपके आइडियाज़ को रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में इम्प्लीमेंट करते हैं. कोई बात नहीं, आपको नहीं आता, हम सिखाएंगे. With this line, our mission is so simple but powerful. सालों से बने हुए थ्योरी और प्रैक्टिकल के गैप में ब्रिज की तरह खड़ा हुआ है फ्लक्स. इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू मैकेनिकल एनर्जी. सबने पढ़ा है पंखे चल रहे हैं कि बिजली आने पर पंखा चलता है, लेकिन आप फ्लक्स में आके पंखे को बना के सीखते हैं और उसको चला के सीखते हैं. Yes, so बड़ी बड़ी बातें तो बहुत हो गई, अब ये बताओ करते क्या हो? हम बड़ी बड़ी बातों के साथ बड़े बड़े काम भी करते हैं. हम इवेंट्स कराते हैं, वर्कशॉप्स कराते हैं, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग सेशंस देते हैं, जहां सीखी हुई स्किल्स को ना सिर्फ आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में यूज करते हैं बल्कि रियल लाइफ में यूज करते हैं. हाँ, टेक्निकल इवेंट्स. अभी मिराज का प्रेजेंटेशन देखा है ना? मिराज के प्रेजेंटेशन में जिस टेक्नोविजन का क्लिप यूज हुआ था, वो टेक्निकल इवेंट टेक्नोविजन के मेजर पार्ट्स फ्लक्स कंडक्ट कराता है. और कोलैबोरेशन इज द की. ना सिर्फ हम दूसरे कॉलेजेस के साथ कोलैबोरेट करते हैं, वहां जाके सीखते हैं, सिखाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, बल्कि उन्हें इनवाइट करते हैं कि हमारे कॉलेज में आए, सीखें और सिखाएं. अच्छा, स्टार्टिंग की इंट्रो वीडियो तो देखी थी ना, कितने सारे प्रोजेक्ट्स बनाए थे. यही रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स हम बनवाते हैं, जहां हमारे मेंटर्स की गाइडेंस हमारे फ्यूचर को शेप करती है और हमारी लर्निंग्स को एनहांस करती है.
ओके हम सिर्फ सीखते नहीं हैं, सिखाते भी हैं. दीज आर आर इवेंट्स. सो फर्स्टली करियर विस्ता, जहां हमने स्टूडेंट्स की फ्यूचर को शेप किया है. आप नए नए आए हो, आपको पता नहीं क्या करना है, कोई बात नहीं, फ्लक्स बताएगा. रोबो सॉकर, फुटबॉल तो सबने खेली है, मैंने भी खेला है, लेकिन फ्लक्स रोबोट से फुटबॉल खिलाता है. अरे भाई थोड़ा एकेडमिक्स पे भी ध्यान देना है. तो यही जो एग्जाम वार्ता है, यहाँ हमारे कॉलेज के टॉप परफॉर्मर्स ने एकेडमिक्स सेक्शंस कंडक्ट कराए सो दैट यू कैन स्कोर गुड CGPAs. कोडिंग के सपने तो सब लेके आए हैं, पर कोडिंग कंपटीशन का क्या? SATI का सबसे मोस्ट अवेटेड कोडिंग कंपटीशन कोड मंत्रा, जो फ्लक्स के द्वारा कराया जाता है, जहां ना सिर्फ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम बनाए जाते हैं, बल्कि लिमिटेड टाइम पीरियड पे वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कराए जाते हैं. अच्छा, कभी आप लोगों ने सोचा है कि सेंसर्स कैसे काम करते हैं? पर्दे अपने आप खुलते कैसे, बनते कैसे, लाइट अपने आप एंटर करने से चालू कैसे हो जाती है? यही होम ऑटोमेशन हमने अपने इवेंट टच इट में सिखाया है. रोबो रेस, फार्मूला 1 रेस, रेसिंग कार, लड़के तो बहुत फैन हैं, बहुत फैन हैं, लेकिन SATI तो फ्लक्स की रोबो रेस का दीवाना है. अच्छा जल्दी बताओ, पबजी किस किसने खेला है? रेज योर हैंड्स. मम्मी से मार पड़ी है पबजी के लिए? मम्मी फोन चला लेती थी तो लैपटॉप पे खेलना शुरू कर देते थे, लैपटॉप चला लेती थी तो फोन पे खेलना शुरू कर देते थे. वेल, फ्लक्स ने वेलोरेंट करवाया था, वेयर मल्टीपल टीम्स पार्टिसिपेटेड इन आवर इवेंट, जहां उन्होंने compete किया फॉर द गेम वेलोरेंट. देख लो, अब मम्मी फोन नहीं चलाएगी. फ्लक्स आल्सो concentrates on e-sports. So e-sports fans, make some noise. Noise bro. तो ये हमारे कुछ इवेंट्स के ग्लिम्सेस है, जहां आप देख सकते हैं वो हमारा रोबो सॉकर का है, जहां बॉट्स फुटबॉल खेल रहे हैं, गोल कीपिंग हो रही है. आगे आप देख रहे हैं कई सारे इवेंट्स हो रहे हैं लगातार, फैकल्टीज का इन्वॉल्वमेंट रहता है लगातार, जूनियर्स और सीनियर्स का प्रॉपर इंटरेक्शन हो रहा है. काफी सारे ग्लिम्सेस आप देख पाएंगे. You can also see Technovision. Okay, so our workshops. हम एक मैदान के खिलाड़ी नहीं है, हमने सारे गेम खेले. हम मल्टीपल डोमेन्स में वर्कशॉप्स कराते हैं, सच एज वेब डेवलपमेंट, क्लाउड, आर्डिनो, एंड्रॉइड वर्कशॉप्स, AI/ML, UI/UX एंड ग्राफिक डिजाइनिंग वर्कशॉप्स. ये उन वर्कशॉप्स के ग्लिम्सेस हैं जहां हम अपने सीनियर से काफ़ी कुछ सीखते हैं, और इन वर्कशॉप्स के जो प्रोजेक्ट्स आते हैं, उन्हीं प्रोजेक्ट्स पे हम काम करते हैं. आइडियाज़ प्रोजेक्ट्स के लिए यहाँ से आते हैं. और अभी आपके लिए एक सरप्राइज है, ये इन वर्कशॉप्स का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट. तो बड़ी बड़ी बातें कर ली यार, बहुत देर से तुम लोग का भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, बस बातें किए जा रहे हैं. अरे कुछ दिखाओ भी, फ्लक्स वालों कुछ तो करो. Yes, it's showdown time. पीछे पीछे ये रैंप देखिए, ये रैंप सब प्लीज 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 सब साइड हो जाए. कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है. प्लीज सब साइड हो जाए, बाकी लोगों को भी देखने दें. ऑल राइट, आ रहा है, सब अपने फोन निकाल के रखिए. ऑल राइट, तो ये 4 पहिए वाली गाड़ी क्या है धनंजय? ये 4 चक्के वाली गाड़ी नहीं, बग्गी है, बग्गी. अरे तो इसका काम क्या है? भाई ये देखने में छोटा लग रहा है, ये काम बड़े बड़े करता है. ये मेजर मिलिट्री ऑपरेशंस में क्रूशियल रोल्स प्ले करता है. जब पहाड़ी इलाकों में भारी से भरकम सामान लेके जाना होगा, आप इसके ऊपर लाद दो, ये एक झटके में ऊपर लेके जाएगा. और ये श्योर ये इतना कर लेगा? हाँ भाई, फ्लक्स वालों ने बनाया है, बस मोटर ही तो बढ़ा देना है. Yes, you can see this is a project made by our seniors, and ऐसे ही बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं. फॉर एग्जाम्पल सॉकर बॉट, जहाँ पे हमने बॉट्स से सॉकर खिलवाया है. एंड ऑल्सो रोबोटिक आर्म, जो आपने स्टार्टिंग के वीडियो में देखा होगा, जो भारी से भारी भरकम सामान को उठा लेता है. ड्रोन से फोटो तो सबने खिंचाई है, पर बनाता फ्लक्स है. फिर अब सिर्फ जमीन तक हम सीमित नहीं रहे, हम जमीन वाले नहीं, अब आसमान के ऊपर जाने वाले हैं. रॉकेटरी प्रोजेक्ट से हम आसमान के ऊपर जाएंगे, क्योंकि स्काई इज नॉट आवर लिमिट. फिर रिसेप्शन हॉल में जाके सरस्वती माता को तो सबने प्रणाम किया होगा. वो सरस्वती माता डायमंड जुबली सेटअप, वो भी फ्लक्स ने ही बनाया, सबने देखा है. आप देख लें, सब ये देखें, सबको दिख रहा है. ये वो 4 चक्के वाली बग्गी है जिसपे आप सामान लाद के ऊपर तक लेके जा सकते हैं.
खेती करा सकते हैं आप, इससे खाद बीज दवाई सब छिड़क सकते हैं। Yes, this is a project made by our seniors. Okay, चलो सीख लिया, सिखा लिया, दिखा दिया, सब कुछ कर लिया, अब क्या? अब बारी जीतने की। Yes, our achievements. We have participated in several hackathons. उनमें से एक है Sprit Hacks 2.0, जहां हमारे क्लब के सीनियर्स ने फर्स्ट रनर पोजीशन गेन किया था, and with a prize money of 30,000 rupees and funding opportunity of 1.5 crore rupees. Exciting, isn't it? 1.5 करोड़ की फंडिंग, असली साक्ष तो फ्लक्स में है, सार्क टैंक तो यूं ही चल रहा है। Yes, and SIH Smart India Hackathon. Our माहौल भी है। seniors have won SIH, a hackathon conducted by the government of India, जहां गवर्नमेंट अपनी प्रॉब्लम्स को रखती है for the students to solve it. वहां उन्होंने फर्स्ट पोजीशन गेन करी है with a prize money of 1 lakh rupees. एक बार फिर पैसे आए हैं। And next is Hack Overflow 2.0, जहां हमारे प्राउड बैचमेट्स ने टॉप 10 पोजीशन गेन करी है, जिसके एक पार्टिसिपेंट्स तो हमारे सामने ही हैं, धनंजय सर। वुड यू लाइक टू शेयर योर एक्सपीरियंस? मैं भी जब आया था यहीं बैठा था तुम लोगों के साथ, ऐसे हमारे सीनियर्स भी अपने एक्सपीरियंस बताए थे, हैक ओवरफ्लो, हैकाथॉन्स, सबके बारे में बताया था, वहीं से इंटरेस्ट आया था। देखो पहला हैकाथॉन था मेरा, और हैकाथॉन से ज़्यादा एक्साइटमेंट मेरे को था मुंबई जाने का। पहली बार मुंबई गया था, माया नगरी सुना था खूब, वहाँ गया और हैकाथॉन में जब गया तो भाई 267 टीम्स पूरे इंडिया से आई थी। सुन रखा था बेंगलुरु टेक हब है, आईटी हब है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आईटी सेक्टर है, बेंगलुरु, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, हर जगह की टीमें आई हुई थी। देख के थोड़ा सा तो नर्वस हुआ था कि अब क्या, हम कहाँ हैं यार, नॉर्मल विदिशा से आए हुए, जीतेंगे नहीं जीतेंगे क्या है। पर हाँ, ऐसे मोमेंट पे जो फ्लक्स में इतने सारे प्रोजेक्ट्स बनाए थे, बार बार उन प्रोजेक्ट्स पे फेल होना, सीखना, करते रहना, वो क्रिटिकल थिंकिंग, उसने हमारे डिमोटिवेशन को मोटिवेशन में बदला। और जिन आइडियाज़ पे हम लगातार काम करते रहे हैं फ्लक्स पे, उसी पे काम करते हुए हम कंटिन्यू रखे हैक ओवरफ्लो में। और हाँ, जैसा आप देख पा रहे हैं, अमंग टॉप 10 रैंक सिक्योर की थी हमने। और हाँ, ये हैकाथॉन वगैरह तो सब पार्टिसिपेट करो, लेकिन जाओ सीखने के लिए जाओ भाई, खाना भी अच्छा मिलता है वहाँ, घूमना हो जाता है, खाना हो जाता है, सीखने का सीखना हो जाता है, प्रोफेशनल्स की तरह काम करते हो, तो हैकाथॉन में तो सब आओ। देखो Yes, Flux is an opportunity to join all the hackathons. IIT visits. अच्छा, IIT में जाना सपना कितने लोगों का था? सच सच बताना। मेरा था, पर क्या करें, अफसोस जा नहीं पाए। कोई बात नहीं, फ्लक्स लेके जाएगा। हमने IIT इंदौर और IIT बॉम्बे के साथ कई बार कोलैबोरेशन किया है। सिर्फ कोलैबोरेशन नहीं, हम कोलैबोरेशन तो करते ही हैं, हम जाके पार्टिसिपेट्स करते हैं देश भर की बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट से, IITs, NITs, और ना सिर्फ पार्टिसिपेट्स करते हैं, झंडे गाड़ के आते हैं SATI फ्लक्स का। आप देख सकते हैं IIT इंदौर रोबो रेस रैंक 6, IIT बॉम्बे बोट रेस रैंक 16, वो गाड़ी बोट रेस पे पानी पे बोट चल रही थी, इधर रोबो सॉकर पे बॉट खेल रहे हैं फुटबॉल। वीडियो नहीं चल रही क्या? कुछ टेक्निकल प्लीज। चलिए, ये हमारे रियल प्रोजेक्ट्स है जो कि हमारे सीनियर्स ने शोकेस किए थे IITs में। नाउ टॉकिंग अबाउट कोलैबोरेशन विद IIT, फिर से कर रहे हैं क्या? हाँ, फिर से कर रहे हैं। सो वी आर कोलैबोरेटिंग विद IIT बॉम्बे वंस अगेन फॉर अ वर्कशॉप फॉर देयर टेक्नोफेस्ट, जहाँ पे IIT के ऑफिशियल्स आपको गाइड करेंगे फॉर दिस वर्कशॉप ऑन 22 September at Smart Classroom 11 AM. So mark your calendars and don't be late. IIT में जाना है तो कुछ तैयारी तो करनी पड़ेगी ना, वो तैयारी कराएगा फ्लक्स 22 सितंबर स्मार्ट क्लासरूम में IIT प्रोफेशनल्स के द्वारा, क्योंकि इस बार IIT जाएंगे, जीत के आएंगे, पूरी तैयारी से जाएंगे। हमारा सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट, जो सरप्राइज की मैं बात किया था, मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि अभी हमने रिसेंटली अपने क्लब का ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च किया है ऑन द ओकेजन ऑफ एनिवर्सरी ऑफ आवर क्लब। ये वेबसाइट हमारे क्लब के वेब डेवलपर्स ने बनाया है, ना कि बनाया नहीं है, लॉन्च भी किया है। उन्हीं वेब वर्कशॉप्स का नतीजा है, वहीं से जन्मा हुआ आइडिया है। और सिर्फ कह नहीं रहे हैं, आप इस पे स्कैन करो, डायरेक्ट अभी वेबसाइट पे विजिट करो, फीडबैक बताओ, अभी नई वेबसाइट है, क्या चेंजेस करें, बताओ, आप बताओ। See it for yourself what Flux is capable of. बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है वेबसाइट विजिट। सबने स्कैन कर लिया? चेंज करें? चलो चेंज कर। ओके,
तो माहौल बन गया है फ्लक्स में आने वाला। आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? तालियां बजाओ एक बार और बजाओ जरा, समझ में आए? हाँ, आने वाले, माहौल बन चुका है आने का। तो माहौल बना, कैसे आओगे? कुछ आइडिया है? फॉलो करो फ्लक्स का इंस्टा हैंडल, लिंक्डइन हैंडल, कहाँ कब कैसे आना है, कब आना है, ये आपको यहाँ से मिलेगी जानकारी। और हाँ, सिर्फ रिक्रूटमेंट तक का वेट नहीं करना है, ये रिक्रूटमेंट का वो छोड़ो, आप अपने आइडियाज लाओ, फ्लक्स आपके आइडियाज पे काम करेगा। कहाँ लाना है? KSH के जस्ट बगल वाली बिल्डिंग, उधर खिड़कियों से बाहर देखो, वही हमारा फ्लक्स ऑफिस उधर। वहां आप अपने आइडियाज लाएं, आपके आइडियाज के साथ हम काम करेंगे। तो आ रहे हो ना यार? टेक्निकल कॉलेज में तो आ गए हो, अब टेक्निकल क्लब में ना आओगे, ये अपने साथ नाइंसाफी कर रहे हो, तो इस नाइंसाफी से बचो, फ्लक्स में आओ। बताओ, टेक्निकल कॉलेज तो ज्वाइन किया है, टेक्निकल क्लब ज्वाइन नहीं करोगे तो ऐसी कैसी बात है? डू कम इन फ्लक्स एंड यस, डोंट forget 22nd September, our collaboration with IIT Bombay for the workshop and the tech fest organized there. See you there. Thank you so much and best of luck for your entire engineering journey. Thank you so much and have a nice evening. Thank you to the Technical Club for that fascinating insight into the world of innovation and problem solving. Their work shows how technology can transform ideas into reality. Let's give them a huge round of applause. Next, we step into the dynamic world of programming and cybersecurity with the Cyber and Coding Club. If you have ever wanted to master the art of coding or learn how to protect the digital world from cyber threats, this is the perfect club for you. Guided by coordinator Professor Sumit Dhillon sir and Dr. Vipin Pait sir, and co-coordinators Professor Abhay Upadhyay sir and Professor Apurva Yadav ma'am. Let's welcome the brilliant mind behind the Cyber and Coding Club to take the stage and share their journey. Okay, so a very pretty afternoon to one and all. अभी कुछ देर पहले मैं पीछे खड़ा हुआ था and I could really see the fatigue faces over there. तो देखो, एक सिंपल सी चीज़ है, मुझे पता है यहाँ पे खड़े होने पे रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो कैसा लगता है. So until and unless I do not get a loud cheer, whether all you are ready to hear me out, I won't start. So are we ready? Can't hear it. Are we ready? Once again, are we ready? Yeah. देखो, साइबर सिक्योरिटी एंड कोडिंग क्लब समृद्धि हैज एलोबरेटेड अ लॉट, ओके, उसने बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें कर दी, बट लेट्स कम टू द रियलिटी टर्म्स. बिफोर वी गेट इनटू दिस क्लब, आई वुड लाइक टू शेयर अ स्टोरी विथ यू. देखो, कहानी का समय आ गया है तो सबको ध्यान देना है, ठीक है? तो सारे के सारे फर्स्ट ईयर के यात्रीगण से मेरा अनुरोध है कि अपने कान और आंखें यहाँ पर केंद्रित कर लें. नाउ दिस स्टोरी इज अबाउट चिंटू. चिंटू एक ऐसा लड़का है जो कि अभी अभी स्कूल से पास आउट हुआ है. चिंटू सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव है. उसे पता है कि कॉलेज जाना है, लैंग्वेज सीखनी है, प्लेसमेंट में बैठना है, अच्छी कंपनी क्रैक करनी है. रूट तो उसको मालूम है, बट रियलिटी वो कौन बताएगा. चिंटू कोडिंग क्लब में आता है, चिंटू फर्स्ट ईयर के कॉलेज में आता है और उसे यहाँ आने के बाद रियलाइज़ होता है कि यार रियलिटी तो कुछ अलग ही चल रही है. यहाँ पे जो हमने सोचा था कि बहुत ही आसान और सिंपल होगा, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है. फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर चिंटू स्पेंड करता है. फाइनल ईयर में आने के बाद उसको रियलाइज़ होता है कि एक्चुअल में रियलिटी है क्या. अब ये चिंटू की कहानी है किसकी? ये चिंटू की कहानी है आप सभी की, जो अभी अभी स्कूल से पास आउट हुए हैं, फर्स्ट ईयर में इस कॉलेज में आए हैं. ये चिंटू की कहानी है ये सभी सेकेंड और थर्ड ईयर के वॉलंटियर्स की, जिन्हें आप बगल में खड़े हुए देख सकते हैं. और ये कहानी है हम जैसे फाइनल ईयर स्टूडेंट्स की, जो कि यहाँ पे खड़े हैं और ये बातें कर रहे हैं. सो नाउ यश, इफ वी कैन स्टार्ट. Again, technical glitch, we can't do anything. But till then, let's discuss more about it. देखो, यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी और कोडिंग क्लब की बात हो रही है. बहुत बड़े बड़े टर्म्स है भाई, इतनी आसानी से हम समझ नहीं पाएंगे कि ये है क्या. बट तुम्हें रियलिटी समझने की ज़रूरत है. कोडिंग क्लब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि ये क्लब बना किस चीज़ के लिए है. बट यू हैव टू गेट इनटू द अंडरस्टैंडिंग.
अरे सर, जब सब कुछ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है तो खड़े क्यों हो यहाँ पे कथा वाचने के लिए? मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ताकि मैं आपको रियलिटी बता सकूँ, जो कि ये टर्म्स एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं आपको. एंड टिल देन कैन वी स्टार्ट द पीपीटी? Okay. जब तक ये हो रहा है, I would also like to acknowledge all the efforts that are being made by these faculties who are sitting over here from day till noon, all these volunteers for the smooth conduct of this program. देखो, यहाँ पे जब अगले साल आप खड़े होगे ना, तब आपको इस चीज़ की realization होगी कि इसमें मेहनत कितनी लगती है. हो सकता है आप बैठे बैठे थक गए हो, but you will appreciate the efforts when you will be in the same place. तो at least इनके लिए एक जोरदार तालियां तो बनती हैं. स्टार्ट हो जाती तो यस मैम. गेम्स मैम, ये कुर्सियां ये डिसअरेंज ना कर दे. अच्छा चलो ठीक है. ओके. एज पर द इंस्ट्रक्शंस बाय आवर रिस्पेक्टेड मैम ने बोला इनको कुछ गेम खिला दो. और अभी जैसी जिस सिचुएशन में आप लोग बैठे हुए हो, कोई ग्रैंड गेम खिला नहीं सकते हैं. सो वी विल जस्ट डू एन एक्टिविटी. ऑन माई कमांड यू हैव टू फॉलो. देखो, दो ही कमांड है. व्हेन आई से सिट, यू हैव टू सिट डाउन. व्हेन आई से स्टैंड, यू हैव टू स्टैंड अप. बट मेरे कमांड्स ध्यान से सुनना, कब मैं बैठने के लिए बोल रहा हूँ, कब खड़े होने के लिए बोल रहा हूँ. सो आर वी रेडी? अरे यार, क्या सो रहे हो? यही 3-4 दिन है, फिर तो कॉलेज में वैसे भी सोना है तुमको. आर वी रेडी? ओके. Stand. Sit. Stand. Sit. Sit. वो देखो पीछे को. सो लो भाई, सो लो, आराम से सो लो, कोई बात नहीं. बस टाइम पास हो गया. आप पीपीटी स्टार्ट होने वाली है. Okay, so here I am, myself Rishtu Pandey from final year ECE branch, standing here to represent this particular club. नाम आप खुद पढ़ सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी एंड कोडिंग क्लब. एज आई सेड इन द बिगनिंग, बहुत बड़े बड़े हैवी शब्द हैं भाई, इतने आसानी से झेले नहीं जाएंगे. बट बिफोर वी बिगिन अबाउट दीज थिंग्स, आई विल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई वुड लाइक टू थैंक आवर फैकल्टी कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर सुमित ढिल्लो मैम, एंड इन एडिशन टू दैट आवर फैकल्टी को कोऑर्डिनेटर डॉक्टर विपिन पटेल सर. बिकॉज ये वो गाइड्समैन होते हैं ना, जो कि आपको हमेशा ट्रैक रखे हैं कि आपको सही तरीके से काम करना कैसे है, किस तरीके से आपको डिसिप्लिन में रह के चीज़ें कंडक्ट करनी है. सो दिस इज द थिंग. कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? देखो भैया, फोटो तो तुम्हें बहुत दिखेंगी सारी स्लाइड्स में, ठीक है. ये कुछ इवेंट की फोटोज हैं. अब इसके पीछे की मैं कहानी बताता हूँ. एक्चुअली आपको ये जो ब्लैक शर्ट में बंदा दिख रहा है ना, ही इज हर्ष तिवारी. ही इज ऑल्सो फ्रॉम द फाइनल ईयर. गेस करो इसने किस ईयर में ये वर्कशॉप कराई होगी? एनी गेसेस फ्रॉम द ऑडियंस? फ्रॉम द ऑडियंस. फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर? अरे तुक्का मार दो भाई, वही तो करते हो ज़्यादातर. सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर? ही वॉज इन सेकेंड सेमेस्टर व्हेन ही कंडक्टेड दिस वर्कशॉप. दैट मीन्स द फर्स्ट ईयर. इसी की मैं बात कर रहा हूँ. यहाँ पे तुम्हारी स्किल्स, तुम्हारा टैलेंट मैटर करता है. डजेंट मैटर वेदर यू बिलोंग फ्रॉम द फर्स्ट ईयर, वेदर यू बिलोंग फ्रॉम द सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर. अगर तुम में स्किल है, तुम रिप्रेजेंटेबल हो, you have got the stage, you have got the audience, and that's why we are here, ताकि हम तुम्हें ट्रैक्ड रख सके तुम्हारे लिए सही चीज़ें हैं क्या. ओके, ये सारी चीज़ें तुम खुद से पढ़ सकते हो यार, ये मैं नरेट नहीं करने वाला हूँ. ये वो वी कैन मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. देखो, अब यहाँ पे तुम्हें 3 फोटोज़ दिखेंगी. मैं तुम्हारा फोकस ले जाना चाहूँगा वो कोने वाली फ़ोटो पर. पता है क्यों? क्योंकि ये सबसे लेटेस्ट था. पहली बार हमारे कॉलेज में इंटरनल हैकाथॉन हुई थी. ऑडियंस बहुत अच्छी खासी आई थी. बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है उस इवेंट के ख़त्म होने के बाद रिव्यूज़. वहाँ पे कई ऐसे बच्चे थे, ऑलमोस्ट 50 to 60%, जिनका कोडिंग से कोई लेना देना नहीं था. बट वो आए क्योंकि उन्हें इस चीज़ की रियलाइजेशन समझ में आए कि टेक्निकलिटी इज़ नॉट ओनली अबाउट कोडिंग. उसके अलावा आपकी रिक्वायरमेंट होती है लॉजिक बिल्डिंग की. DSA अभी आपको समझ में नहीं आएगा वो क्या होता है, तो मैं उस पर जाऊँगा भी नहीं. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द टेक्निकल एस्पेक्ट, कोडिंग से कई हद तक बढ़ के चीज़ें और भी होती हैं. और ये इवेंट उसका एकदम प्रूफ है.
झूठ भी तो बोल सकते हो, कहीं और की फोटो लगा दी होगी, है ना? ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम स्कैम नहीं कर सकते हैं। ओके, कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? इसकी मैं बात कर रहा था। दिस वाज द फर्स्ट वर्कशॉप दैट दिस पर्टिकुलर कोडिंग क्लब आफ्टर अ लॉन्ग हॉल, आफ्टर अ लॉन्ग इंटरवल कंडक्टेड, एंड दिस गाय वाज जस्ट इन हिज सेकंड सेमेस्टर, दैट इज फर्स्ट ईयर, जब इसने ये वर्कशॉप कराई थी। और इसकी ऑडियंस लर्नर्स जो थे सेकेंड ईयर से थे, थर्ड ईयर से थे, फाइनल ईयर से थे। अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको कहीं और मिले तो आप प्लीज़ मुझे आकर बताना। ओके, नेक्स्ट वन। ओ भाई साहब, बिग बी द ग्रेट अमिताभ बच्चन इज हियर। अच्छा, कितनों को उनका डायलॉग याद है यार, वो गुरुकुल वाले का, परंपरा प्रतिष्ठा, व्हाट वाज दैट? हाँ हाँ, क्या है? अरे थोड़ा ऊंचा बोलो यार, कम सुनाई देता है। देखो देखो, बॉलीवुड फैंस यहाँ पे बहुत सारे हैं, मुझे भी मालूम है, ठीक है? परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन। कॉलेज में भी हमारे बिग बिग गवर्न तो करते हैं हमें, और इस कोडिंग क्लब में भी, बट कीवर्ड्स चेंज हो जाते हैं। कीवर्ड्स हैं NLC, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? N स्टैंड्स फॉर नेटवर्किंग, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपकी कॉलेज लाइफ का, जहाँ पे आप नेटवर्किंग बनाते हो अपने मेंटर्स, अपने गाइड्स, अपनी फैकल्टीज़ के साथ। आप यहाँ पे नेटवर्किंग बनाते हो अपने सीनियर्स के साथ, जो कि कॉलेज में होते हैं, जो कि पास आउट हो चुके हैं, किसी अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं, क्योंकि आगे जाके आपको रेफरेंस की नीड होती है, जिसमें वो हेल्प करते हैं। यहाँ पे आप नेटवर्किंग बनाते हो अपने बैचमेट्स के साथ, जो कि किसी ना किसी स्किल में अच्छा कर रहे हैं। सो नेटवर्किंग प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल हियर। द नेक्स्ट टर्म इज L, दैट इज लॉजिक बिल्डिंग। अच्छा चलो मुझे ये बात बताओ, HC वर्मा, RD शर्मा याद है ना? सबको बहुत पसंद रही होगी स्कूल टाइम में भाई। कोने में बच्चे बोल रहे पसंद होती तो कहीं यहाँ थोड़ी होते, है ना? वॉट आई मीन टू से इज, जिस तरीके से तुम्हारी ये चीज़ें रिक्वायर होती हैं करने के लिए, उससे पहले तुम्हें बेसिक आना चाहिए। 11th 12th में तुमने सीखा होगा कि उससे पहले आपको बेसिक सीखना पड़ता है, देन यू गेट टू द एडवांस लेवल एंड सॉल्व दीज बुक्स। उसी सेम तरीके से आपको कोडिंग में उतरने से पहले लॉजिकल बिल्डिंग, किस तरीके से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, PSA आपकी प्रॉब्लम स्किल असेसमेंट, किस तरीके से आप प्रॉब्लम्स को अप्रोच करते हो, ये सारी टेक्निक सीखनी होती है, और ये आपका दूसरा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट स्टेप है। तीसरी चीज़ है C, जिसको मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, वो है आपका कम्युनिकेशन। Until and unless you are not able to execute and represent your idea in front of others, उस आइडिया का कोई मतलब नहीं है। जब तक आप में स्किल नहीं है अपने आइडिया को किस तरीके से आप एक्शन के फॉर्म में ला सकते हो, किस तरीके से दूसरों को समझा सकते हो, तो आपका आइडिया अपनी इंपॉर्टेंस खुद डिग्रेडेट करता है। इसलिए हमारे ये 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं कॉलेज के, जो हमारे बच्चन साहब हमको समझाना चाहते हैं। आर वी क्लियर? फिर सो गए? ओके, दिस वॉज अनदर वर्कशॉप दैट वी कंडक्टेड। एज आई सेड इन द बिगनिंग, तुम्हें फोटोज इवेंट्स बहुत सारे दिख जाएंगे, बट आई एम नॉट स्ट्रेसिंग अपॉन दीज थिंग्स फॉर राइट नाउ, क्योंकि एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है यार, पास्ट में तुमने जो अचीव कर लिया वो पास्ट में ही रहने वाला है। व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप आज के दिन क्या कर रहे हो, और आज के दिन हम यहाँ पे हैं, तुम मुझे सुन रहे हो और मैं यहाँ से बोल रहा हूँ। सो ये सारी चीज़ें आप एक बार कॉलेज में आओगे, चीज़ों से मतलब यहाँ के एनवायरनमेंट में आप ढलोगे, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ भी कंडक्ट की जाएंगी। डू नॉट वरी अबाउट दैट। नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स की बात होती है। हर एक क्लब, हर एक कम्युनिटी जो यहाँ पे बनी हुई है, किसी न किसी गोल्स और ऑब्जेक्टिव से बनाई जाती है। ऑफ कोर्स बेसिक ऑब्जेक्टिव सबका यही होता है, स्टूडेंट का इंट्रापर्सनल डेवलपमेंट जितना ज़्यादा हो सके। हर एक क्लब उसी के रिगार्डिंग काम करता है लगातार, और यहाँ पे आप चीज़ें पढ़ भी सकते हो। अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स, RD शर्मा, HC वर्मा वाली बात जो मैंने बताई। दूसरी चीज़ है आपकी एक्सप्लोरेशन ऑफ लैंग्वेजेस एंड टेक्नोलॉजीज़। जिसका थोड़ा भी टेक्निकल ड्रिफ्ट होगा उसको ये चीज़ें मालूम होंगी कि मल्टीपल लैंग्वेजेस होती हैं जिसमें आप कोडिंग करते हो, वेदर इट्स पाइथन, इट्स जावा, इट्स C, वो सारी चीज़ें। 1 साल 2 साल तो बच्चे इसी में निकाल देते हैं कि कौन सी करें, सारी कर लें, हो पाएगा? यही सवाल आपके 2 साल तक इंजीनियरिंग लाइफ में निकल जाते हैं, जो कि टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं। इन सब चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग समझाने के लिए ही ये क्लब बनाया गया है, आपको क्लैरिटी देने के लिए चीज़ों की। तीसरी चीज़ है चैलेंज योरसेल्फ। हमें ना हमारे कंफर्टेबल जोन में रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। जो चीज़ें आसानी से एग्जीक्यूट हो जाएं, जो चीज़ आसानी से हम कर सकें, वो हम करना चाहते हैं। बट वी आर नॉट रियली ईगर टू डू समथिंग विच इज़ अगेंस्ट आवर कंफर्ट जोन। यहाँ पे आपको वो करना पड़ेगा। इफ़ यू रियली वांट टू सक्सीड मूविंग अहेड इन द कॉलेज टाइम अहेड, आपको खुद को चैलेंज करना पड़ेगा उन चीज़ों से जिसमें आप स्किल्ड नहीं हो, जिसमें आपको आसानी नहीं होती है करने के लिए। एम आई क्लियर व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस क्लब? पीछे फिर सो गए। एम आई क्लियर?
अरे टेक्निकल भैया यार, ग्लिच कर दिया आपने। प्रोग्राम शेड्यूल एक्टिविटीज़ लिखी हैं, इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, ये कोई ब्लंडर नहीं है, मिस्टेक नहीं है। एक्चुअली में यहाँ से इंटेंशनली इवेंट्स का नाम हटाया गया है, क्योंकि हम चाहते हैं आप यहाँ कॉलेज में आओ, आप हम सजेस्ट डाउन करो कि आपको किस चीज़ के रिगार्डिंग हेल्प चाहिए। क्या वर्कशॉप कंडक्ट होनी चाहिए, क्या इवेंट्स कंडक्ट होने चाहिए, क्या कंपटीशन कंडक्ट होने चाहिए, इन ऑर्डर टू अपलिफ्ट योर सेल्फ। इसलिए यहाँ से सारी चीज़ें हटा दी गई हैं। एंड वी विल ईगरली वेट कि आपका रिस्पॉन्स इस पर क्या आता है। लास्ट में आपको एक QR कोड दिखेगा, उसमें आप डेफिनेटली आपको भरना चाहिए। मुझे पता है आधे ज़्यादा नहीं भरोगे, बट आपको भरना चाहिए इसलिए ताकि हम समझ सके कि आपको नीड किस चीज़ की है आगे जाते हुए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मेंबर्स, ये तो आपको खुद से एक्सपेक्टेशन रखनी पड़ेगी, है ना। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इतना विवरण सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि आप में क्या क्वालिटी होनी चाहिए इस क्लब में आने के लिए, कोई भी अगर जवाब दे सके इस चीज़ का, कोई भी। सर मुझे लगता है कि यहाँ पे कोडिंग क्लब में आने के लिए कोडिंग की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। चलो ठीक है, अब तुम लोग जवाब दे नहीं रहे, मुझे स्टूडेंट माना पड़ा। ठीक है, तो बेसिकली ये एक एस्पेक्ट हो सकता है, बट यहाँ पे जो 3 चीज़ें रिक्वायर्ड है। अच्छा, किसी ने हाथ उठाया था क्या? ओके डूड, स्टैंड अप। पेशेंस, ओके, डेफिनेटली यस, जो उसने बोला। नाउ यहाँ पे जो क्या प्रोजेक्ट बिल्डिंग, वेरी नाइस, he deserves an applause man, he deserves an applause. Both of these guys जिन्होंने बोला, यही है आपके स्किल का एग्जीक्यूशन इनिशिएटिव पार्ट में, whether you are able to address the audience or not. अब यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हुई है ना, कमिटमेंट, रिस्पेक्ट, कम्युनिकेशन, बहुत सुना है इन शब्दों के बारे में, बट इनको एक्शंस में एग्जीक्यूट करना उतना ही टफ होता है। किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा एफर्ट लगते हैं, बट उससे भी ज़्यादा एफर्ट लगते हैं उसे कंसिस्टेंटली करने के लिए। जब आप कोडिंग फील्ड में उतरोगे तो आपको इस चीज़ की रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा होगी। जब घंटों भर 2 लाइन का कोड एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है ना, देन वी गेट ए रियलाइजेशन कि यार दिक्कत बहुत ज़्यादा है। एंड मोस्ट ऑफ अस ड्रॉप डाउन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि आप नहीं करनी है इसको, आप कुछ और फील्ड एक्सप्लोर करेंगे। होता क्या है, आपने उस चीज़ में जितना भी टाइम इन्वेस्ट किया है वो आपका वेस्टेज पार्ट में चला जाता है, एंड यू ऑटोमेटिकली डिडक्ट योर टाइम इन द कॉलेज ऐसी चीज़ को सीखने में जिसमें आप इंटरेस्टेड नहीं हो। तो ये चीज़ें कुछ लिख दी गई हैं क्योंकि हमें कुछ लिखना था, बट या लेट अस सी। मेंबरशिप एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, डू नॉट वरी अबाउट दैट, आगे जाके आपको खुद पता चल जाएगा कि किस तरीके से इस क्लब में आ सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेंबरशिप और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, बट वी विल डेफिनेटली लुक एट। देखो, आज अगर मैं यहाँ पे अकेला खड़ा होकर प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ तो उसका बहुत ही सिंपल सा रीज़न है, यहाँ पे हर कोई अलाउ नहीं है। इफ़ यू आर रियली डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर वर्क, इफ़ यू आर रियली ईगर टू डू समथिंग, या फिर किसी चीज़ को लीड करने के लिए तुम ईगर हो, देन दिस प्लेस इज़ फॉर यू। बट हाँ, मजाक मस्ती के लिए डेफिनेटली नॉट, एंड दैट्स द सोल रीज़न यहाँ पे सिंगल इंसान खड़ा हुआ है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। या नेक्स्ट स्लाइड। रिसोर्सेज एंड सपोर्ट अवेलेबल, मैं जैसे कि मैंने बताया था तुम लोगों को, नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये जो यहाँ पे रिसोर्स, ऑनलाइन कोर्सेज, डीबगिंग टूल्स, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है ना, ये सारे आपके सीनियर्स आपको बहुत ईजिली प्रोवाइड कर सकते हैं और आपको बता सकते हैं कि किसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। बट अंत में बात तो वही आती है, हमें करना होगा तब तो हम करेंगे, वरना तो कुछ भी नहीं, मतलब नहीं है इसका। सो दैट इज़ द थिंग। तीसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है सपोर्ट। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ना, पहली 2-3 लाइन्स बहुत इंपॉर्टेंट है यार। वी हैव एक्सपीरियंस मेंटर्स एंड पीयर्स हु विल हेल्प यू थ्रू एनी प्रॉब्लम यू फेस इन योर प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट बिल्डिंग आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आगे जाके अगर आप कंपनीज को भी फेस करोगे तो वहाँ पे आपके प्रोजेक्ट्स ही देखे जाएंगे, सवाल उससे पूछे जाएंगे। और इस टाइम में आपके जो सीनियर्स होते हैं, जो इन चीज़ों को कर चुके होते हैं, दे आर द बेस्ट मेंटर्स दैट यू कैन हैव। ऑफकोर्स फैकल्टीज हमेशा सुप्रीम पोजीशन पे होने वाली हैं, बट कई बार हमें ऐसा इंसान चाहिए होता है जिसके साथ हम आसानी से बात कर सकें, शेयर कर सकें आइडियाज़। देन योर सीनियर्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, नेक्स्ट चेंज हो गया भाई। अच्छा, QR स्कैन कर रहे हो क्या? तो देखो, एक चीज़ बहुत ही ज़रूरी है, स्टार्टिंग में मैंने बोला था और लास्ट में मैं फिर से इस चीज़ को एड्रेस करना चाहूँगा। यहाँ पे अगर ये एफिशिएंटली और स्मूथली प्रोग्राम कंडक्ट हो रहा है, उसमें बहुत बड़ा रोल इन सभी लोगों का है जो यहाँ पे लगातार मेहनत कर रहे हैं सुबह शाम तक। इन एडिशन टू दैट, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है आप सभी का।
डिसिप्लिन्ड होके सुबह से शाम तक बैठना और चीज़ों को सुनते रहना, इट्स नॉट एन ईजी टास्क, इट्स वेरी टीडियस, आई डेफिनेटली अंडरस्टैंड दैट. इसलिए अब जितनी भी तालियां तुमने बचा के रखी थी ना, सबसे तेज तालियां अब बजनी चाहिए खुद के लिए. सो कम ऑन, गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर योरसेल्फ. आई होप तुमने ये स्कैन कर लिया होगा. थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली. दिस इज माई टाइम. ऋषु पांडे साइनिंग ऑफ. थैंक यू. A big thank you to the Cyber and Coding Club for that fantastic introduction. Your work in exploring the world of coding, cybersecurity, and tech information is truly impressive. Up next, we have Entrepreneurship Cell of our college. eCell is the heartbeat of innovation and entrepreneur spirit on this campus, dedicated to nurturing the next generation of entrepreneurs and leaders. Through workshops and mentorship programs and networking opportunity, eCell provides students with skills, resources, and guidance needed to turn their innovative ideas into successful ventures. It is led by its coordinators, Dr. Pranita Jain ma'am, Dr. Anand J. Chandravanshi sir, and co-coordinator Professor Ruchi Thakur ma'am and Professor Garima Jain ma'am. Driving innovation and entrepreneur spirit on campus, I request the representatives of this club to take the stage and share their vision. Good evening, everyone. थक गए क्या सभी? Good evening, everyone. खाना खा के नहीं आए सब लोग? अरे वाह, चलो. बहुत सारे क्लब्स हो गए. नाम याद है? Well, they have been saving the best for the last. Okay. एक I am बार Shubhi Upadhyay and I am Om Jain. and उसके we पहले एक बार होटिंग कर लेते हैं. बहुत डाउन लग रही है एनर्जी. How is the जोश? और जोर से भाई. How is the जोश? How is the जोश? How is the जोश? आवाज अभी भी कम आ रही है. थक गए लगता सभी. कुछ इंटरेस्टिंग मिलेगा, देखते. Hello everyone, I am Shubhi Upadhyay And I am Om Jain. and we are here to present Entrepreneurship Cell, or as we call it, eCell. So what exactly is an e-cell? कोई जानता है e-cell कैसे काम करता है, क्या करता है? किसी को कोई नॉलेज? Anyone? किसी को भी नहीं होगा. चलो मैं ही बता देता हूँ. We are a community of students जो कि इनोवेट पैशनेट है इनोवेशन को लेके, बिजनेस को लेके, मेकिंग आइडिया कम्स टू लाइफ. इफ वेदर यू हैव एन आइडिया ऑफ a startup or you want to know more about the entrepreneurship, this is the place. Next slide. Next. Our cultural coordinator, Dr. Ravindra Mohan Saxena sir, and our Dr. Veena Datar ma'am, and our faculty coordinators, Dr. Pranita Jain ma'am, and Dr. Anand Chandravanshi sir, and Professor Garima Jain ma'am, and Professor Ruchi Thakur ma'am. Okay, now show me with a quick show of hands, how many of you have thought of starting your own business someday? सबने सोचा होगा भाई कॉर्पोरेट जॉब का तो कोई भरोसा नहीं, खुद का कुछ स्टार्ट करते. कम ऑन गाइस, शार्क टैंक तो सबने देखा होगा. देखा है कि नहीं? सोचा होगा ना? Great. Now tell me, out of all these hands that are raised, how many of you have actually done something to put that thought into action? See, exactly our point. Well, being a part of eCell helps you get there faster. ओके, फिर से बोर हो गए लगता. चलो ई-सेल से रिलेटेड एक वीडियो देखते हैं.
कैसा लगा? कुछ जोश इंटरेस्टिंग आया? था? चलो अब इसी को एक्सप्लेन करते हैं आगे। ओके So our past events, what we have done throughout the year, जितने भी events हमने करवाए हैं, ईसन SATI काफी events कराता है throughout the year, तो वो सबका overview अपन देखेंगे। चलो आईपीएल की बात करते हैं। आईपीएल किस किसने देखा है? अभी भी आधे हाथ खड़े नहीं है। आईपीएल नहीं देखते तुम लोग? IPL तो सब देखते हैं। देखते हो? इंटरेस्ट है?